આબને બૂરજ એક જ સૂરજ, તું બીજો સૂરજ થા. જા રે ઝંડા જા, ઊંચે ગગન થઈને મગન, લહેરા જા જા જા. અને ખરેખરમાં 14 જુલાઈએ લોન્ચ વ્હીકલ માર્ક 3 સાથે ભારતના ઝંડાએ ચંદ્રના સાઉથ પોલ તરફ આગેકૂચ કરી, જે નવા સંશોધનો અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાથરતો નવો સુરત સાબિત થઈ શકે છે. આ વિશે વધુ જાણીએ ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકો પાસેથી. રાત્રિના આકાશમાં જેની શીતળતા પૃથ્વી પરની સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ પર ફેલાય છે, મહાસાગરમાં આવતી ભરતી ઓટ, ફૂલોની મહેક, સમગ્ર પશુ પક્ષી, કૃષિ વનસ્પતિમાં જેની હાજરી, પર્યાવરણ, આબોહવા કે પછી માણસના સ્વભાવ પર જેની વધતી ઘટતી કળાની અસર વર્તાય છે, તેવો પૃથ્વીનો એકમાત્ર પ્રાકૃતિક ઉપગ્રહ ચંદ્ર અનાદિકાળથી માનવ ઇતિહાસમાં એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ચંદ્ર એક મૂલ્યવાન વૈજ્ઞાનિક સંપત્તિ છે. ચંદ્ર પરના નમૂનાઓના અધ્યયનથી આપણા સૌરમંડળના પ્રારંભિક ઇતિહાસને જાણવામાં મદદ મળી શકે છે, અને આથી જ ચંદ્રને આંબવાનું સ્વપ્ન દુનિયાના દરેક દેશો સેવી રહ્યા છે. ત્યારે હાલમાં જ 14મી જુલાઈએ ઈસરોએ ચંદ્રયાન 3 મિશનને સફળતાપૂર્વક પૃથ્વી પરથી ચંદ્ર પર પહોંચાડવા પ્રક્ષેપણ કર્યું. આ ઐતિહાસિક ઘટનાના આપણે સૌ સાક્ષી બન્યા. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3. તો ચંદ્રયાન 3 પ્રક્ષેપણના લગભગ 40 થી 42 દિવસ પછી ચંદ્રની ધરતી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરશે. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. ચંદ્રયાન 3ને સફળતાપૂર્વક ચંદ્ર પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરાવવા માટે ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ અથાગ મહેનત કરી છે, જેમાં અમદાવાદ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિકોએ પણ મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. और 10 डिग्री के ढलान पे अगर हमारा लैंडर उतरता है तो ये सेफली उतर पाएगा, सॉफ्ट एंड सेफ लैंड पॉसिबल होगा. तीसरी चीज़ है अर्थ से कम्युनिकेशन. जब आपको पता है कि लैंडर हमारा जो कम्युनिकेट करेगा अर्थ के साथ, तो ये जो आइडिएशन इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है वो हमारे विजिबिलिटी में होना चाहिए, लैंडर उसके विजिबिलिटी में होना चाहिए, तभी वो जो सिग्नल्स हमको भेजेगा या हम जो उसको भेजेंगे वो कम्युनिकेट कर पाएगा. तो हमने ये भी देखा कि जो 14 दिन हैं हमारे वो विजिबल रेंज में होने चाहिए उसके, और चूँकि ये नियर साइड पे है और ये 14 दिन तक इसकी विजिबिलिटी है. विक्रम लैंडर जैसे ही 100 बाई 30 किलोमीटर में जाएगा, उसमें हमारा LI कैमरा लगा हुआ है, लैंडर इमेजर जी. ओके, जो हमको वो कहाँ से जा रहा है उसकी इमेजेस भेजता रहेगा जी. तो जब ये डिसेंट स्टार्ट होगा तो हर 3 सेकेंड पे हमको लैंडर इमेजर की इमेजेस मिलती रहेंगी. जब वो नीचे आना शुरू होगा तब हाँ, जो 16 सेकेंड्स हमारे 16 मिनट्स जो हमारे लैंडिंग में लगेंगे, तो हर 3 सेकेंड में हमारे पास एक इमेज होगी लैंडर इमेजर की जी. तो उसको जो सरफेस है वहाँ का वो कुछ इस तरह का दिखेगा जो आपको जी, फ्लाई थ्रू इस में जो दिख रहा है. ચંદ્રયાન મિશન 3માં 3 મુખ્યત્વે મોડ્યુલ છે, લેન્ડર, રોવર અને પ્રોપલ્શન. તો આ મોડ્યુલનું કાર્ય શું છે તે પણ જાણી લઈએ. कोई ऑर्बिटर है नहीं, तो अभी खाली लैंडर पे हम ध्यान दे रहे हैं. तो चंद्रयान 3 एक लैंडर या लैंडिंग मिशन है. चंद्र की सतह पर हमारे सेफली हमारा यान उतारने की. तो इसके लिए जो भी प्रणालियाँ बनानी है वो सब भी इसरो सेंटर ने मिल करके ये चंद्रयान 3 मिशन की परिकल्पना की थी, और इसके बाद 45 दिन बाद हम सेफली वहाँ पर चंद्र की सतह पर लैंड करेंगे. हमारे जो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम के केंद्र हैं, उन्होंने हमारा ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 जिसको कहा जाता है, जो भारत का सबसे बहुत ही पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, तो उसका निर्माण वहाँ पे हुआ है. इसके अलावा जो हमारा URSC सैटेलाइट सेंटर है बेंगलोर में, उसने सैटेलाइट बनाया है
और उसके अंदर की जो प्रणालियाँ हैं, अलग अलग सिस्टम पेलोड है जो काम करेंगे, तो उसका निर्माण यहाँ पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में हुआ है और फाइनली वो पूरा इंटीग्रेट होके पहुँचाया गया श्रीहरिकोटा, जहाँ से जो कि हमारा स्पेस पोर्ट या लॉन्च पैड है। जी। तो इस तरह से पूरे इसरो के जो अलग अलग अन्य कई सेंटर भी है जिन्होंने भी अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया। ચંદ્રયાન 3 જો સફળતાપૂર્વક ચંદ્ર પર લેન્ડ થશે તો આ ભગીરથ કાર્ય કરનાર ભારત દેશ, અમેરિકા, રશિયા અને ચીન પછી વિશ્વનો ચોથો દેશ બનશે. આ મિશન ચંદ્રના ગહન અભ્યાસ માટે ખૂબ મહત્વનું બની રહેશે. याद करता हूँ 1977-1980 श्रीहरिकोटा में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जब मैं था, कलाम साहब हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। वो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 जो पहला हमारा प्रक्षेपण यान था, पूरा भारत स्वदेश में स्वनिर्मित हमारा ही सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट था। वो सिर्फ 40 किलोग्राम वजन का था और उसकी पूरी तैयारी श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड नंबर 1 से की गई थी और उसका जब सफल प्रक्षेपण किया गया तो कलाम साहब का एक जो सेंटेंस है मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने ये बताया कि यह शुरुआत है, ये 40 किलोग्राम से जो भारत ने स्वदेशी उपग्रह और स्वदेशी लॉन्च व्हीकल बनाना शुरू किया है, आगे जाके हम 400 टन तक का वेट को भी परिवहन करने की क्षमता हासिल करेंगे। और ये इतना उसकी जो सफलता थी, सभी वैज्ञानिक उसको शेयर कर रहे थे। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि भारत का झंडा जो है वो अग्रेसर रह के साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में हमने ये कदम आगे बढ़ा के रॉकेट की जो एक क्लब कहते हैं कि कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने रॉकेट से अपने सैटेलाइट को लॉन्च किया, हम वो क्लब के मेंबर हो गए। તો ચંદ્રયાન 3ની સફળતા માટે આપણે સૌ દેશવાસીઓ ઈસરોની આ ટીમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુડ ન્યૂઝ ટીમનો We રિપોર્ટ. have a majestic liftoff of